آج کل جب سے بسنت ہوا ہے لوگوں نے گانے گانے شروع کر دیے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا ایک گانے سے شروعات کرتی ہوں آج کی ویڈیو پورا دیکھیے گا، اسکپ بالکل مت کیجیے کیونکہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی مزیدار۔ السلام علیکم۔ تو میں پہلے سلام کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو گانا سناتی ہوں۔ کنی کنی جانا بلو دکار، کنی کنی جانا بلو دکار، اسات جانا بلو دکار، ٹکٹ ٹکٹ آؤ لائن بناؤ، ٹکٹ ٹکٹ آؤ لائن بناؤ۔ ٹھیک ہے، لائن بن چکی ہے سب کی۔ تو بھائی اب چلتے ہیں مبارک بادیوں کی طرف، کیونکہ بھائی جو ہمارا صدقہ ٹاؤن ہے اس میں بہت ساری خوشیاں آ گئی ہیں۔ تو بھائی ہمیں کسی سے کوئی جیلسی نہیں ہے، ہمیں سب کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان ترقی کر رہا ہے مجھے کوئی جیلسی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیلسی ان کو ہوتی ہے جن کے پاس نہ ہو، سمجھ آئی نا؟ یہ بار بار اپنی چیز کو کوئی دکھا کر یا شو آف کروا کے اور پھر کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کو خوشی ہو رہی ہے، کس کو جیلسی ہو رہی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن آئی ہیو 3 cars، اوکے۔ میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک میری ہے، ایک میرے بیٹے کی، میرے ہسبینڈ کی ہے۔ اور جناب ہم لوگوں نے برانڈ نیو ٹویوٹا سے شو روم سے ہم لوگوں نے برانڈ نیو گاڑی بک کروائی تھی اور وہ ہم لوگوں نے لی ہے۔ تو الحمدللہ شکر الحمدللہ، کبھی بھی کوئی ہم جھوٹا نہیں کھاتے اور نہ ہی ہم کسی کا اتارا ہوا پہنتے ہیں الحمدللہ، نہ ہی ہم کسی کی یوز کی ہوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں الحمدللہ، اور نہ ہی ہم نے جو گھر لیا ہے یہ کسی کا چھوڑا ہوا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے جو گھر لیا ہے الحمدللہ یہ ہمارا برانڈ نیو ہاؤس تھا، ہم لوگوں نے بلڈر سے بائی کیا ہے جب یہ گھر بن رہا تھا۔ ہم ہی پہلے مالک مکان ہیں اور انشاءاللہ کہتے ہیں ہم اس گھر میں اپنے گھر ساتھ خوش خرم رہ رہے ہیں۔ جیلسی کس بات کی؟ پہلے یہ بتاؤ، تم جو ہر بات میں کہتے ہو بھئی لوگ جلتے ہیں، ایک بات سنو، تمہاری جو یہ گاڑی تم نے جو خریدی ہے نا، کہہ رہے بھئی ہم لوگ دیکھ کے ہم چاہیں گے کہ جلے، تو بھئی ایسی جو گاڑی ہے نا، ہمارے جو خان سامہ ہے نا ہمارے گھر کا، اس کو ہم نے دی بھی اس سے بھی اچھی گاڑی۔ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے 2013 کا ماڈل دیا ہوا ہے، 2013 کا نا؟ ہاں میرے خیال میں 2013 یا 14 کا ماڈل اس کے پاس ہے۔ یعنی کہ تمہارا جو ماڈل سوزوکی کی جو تم نے لے کے رکھی ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے کب کا ماڈل ہے اور کیا چیز ہے، تو اتنا شوقیہ بکھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تم نے جو گھر خریدے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ تم نے جتنے بھی گھر دیکھ لیے ہیں وہ سارے کے سارے وہ چلیے چھوڑیے، کوئی بات نہیں، آپ کی اوقات ہے، اللہ میں نے آپ کو دیا ہے، آپ کو اللہ میں اور دے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ صدقہ ٹاؤن کو اور دے تاکہ بھیک مانگنا بند کر دے، مگر اگر بھیک مانگنا بند کر دیں گے صدقہ ٹاؤن والے تو پھر ان کے پاس آئے گی کہاں سے چیزیں؟ لوگ پتہ نہیں اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہے، پتہ نہیں کس قسم کے پھکڑ لوگ ہیں جو ان صدقہ ٹاؤن والوں کو اتنا کچھ بھیجتے ہیں۔ ان کو وہ غریب مسکین بیچارے بھوکے ننگے لوگ نظر نہیں آتے جو نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، چار مکانوں کے مالک ہیں۔ صدقہ ٹاؤن کے ہر ایک بھکاری کے پاس گاڑی ہے، رائٹ؟ چاہے وہ یہ صدر صاحب ہیں بقول ہمارے تنویر بھائی کے، یہ صدر صاحب ہے، ان کے پاس بھی گاڑی ہے۔ اس کے بعد جناب سلطان صاحب ہے، ان کے پاس بھی گاڑی ہے۔ جناب مخلص صاحب ہیں یا اکرم صاحب ہیں یا وہ جو ہے کیا نام ہے الطاف صاحب، جن کو میری چھوٹی سی پیاری سی جو بیٹی ہے ان کو سیٹھ صاحب کہہ رہی ہیں۔ سیٹھ صاحب، ہاں وہ بھیک مانگ کے جو پیسے جمع ہو گئے تو ان کو سیٹھ صاحب کہیں گے اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے، بڑا گھر لے لیا ہے، اتنا زبردست بیڈ روم بنا لیا ہے، گاڑی خرید لی ہے، تو سیٹھ صاحب تو ہوئے نا۔ وہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، اچھی بات ہے، کسی کو عزت دینی چاہیے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر ان کے پاس کوئی اچیو ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر انسان اپنی محنت سے 2 ہاتھ کی محنت کماتا ہے تو آپ کو جو بھی چیز ملتی ہے نا تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو دعائیں دینی چاہیے، مگر آپ اگر کسی کا حق مار کر، کسی کے گردن پہ پاؤں رکھ کر بالکل اس کے منہ سے نوالا کھینچ کر کھا رہے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسی جناب میریاسی صاحب کی، اور پھر میں نے میریاسی کہہ دیا۔ بھائی میریاسی اس لیے میں کہتی ہوں کہ ان کا جو جدی پشتی جو ان کا کام ہے وہ میریاسی پن ہے۔ یہ لوگ آپ خود پوچھ لو بیٹا، آپ خود پوچھ لو اپنے بھیا جان سے، اپنے جو ہے
अहमदू भैया जो है उनसे पूछ लीजिए। और अपनी भाभी जान, हाँ भाभी जान से याद आया मुझे, भाभी जान भैया कुछ दिन पहले मैंने देखा गाड़ी चला रही थी, वाह क्या बात है। यानी कि गधी भी गाड़ी चलाती है, मुझे तो पता नहीं था कि गधियाँ भी गाड़ी चलाती हैं। चलिए अच्छी बात है, गधी को भी गाड़ी चलाना आना चाहिए, कभी कभी काम आ ही जाता है। गधी को शायद कहते हैं अपने अपने काम में रात को निकलना होता है, तो शायद और ब्रांड साहब सो रहे हों, तो गधी को अगर कोई कॉल आ गई कि भाई मुझे कस्टमर सर्विस चाहिए, तो वो गधी खुद से ड्राइव करके जा सकती है। तो अच्छी बात है। हर एक औरत को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, हर एक औरत को काम करना आना चाहिए, हर एक औरत को हर काम आना चाहिए। ये तो बात हमने सही की। तो जनाब आपकी भाभी जान की जो आज की जो वीडियो लगाई है, जिसमें वो अपनी गाड़ी को शो ऑफ करवा रहे थे, और जनाब वहाँ पर आपकी भाभी जान ने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ था उस पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि भैया पहले तो वो पूरा हिजाब लेती थी भाभी साहिबा, उसके बाद उन्होंने चादर लेना शुरू किया, दुपट्टा ही पहले प्रॉपर तरीके से पूरे जिस्म ढांक के लेती थी। अब जनाब भाभी जान की जो दुपट्टा है, वो मेरे दुपट्टे, मैंने तो फिर प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं, कोई फिट इतने लूज कपड़े हैं कि 4 बंदे भी घुस जाए इसके अंदर, तो वो कपड़े जो है वो इतने खुले, मैं कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ। और दुपट्टा अगर मैं इस तरह लूँ या इस तरह लूँ, मेरा जिस्म छुपा हुआ होता है, किसी को नहीं पता चलता कि जिस्म आपका कैसा है। मगर भाभी जान ने खूब टाइट फ्रॉक पहना हुआ है। भाभी जान को आजकल फ्रॉक पहनने का बड़ा शौक चढ़ा है। भाई भाभी जान आप बड़ी क्यूट लग रही, किसी ने कह दिया, भाभी जान ने जितने भी मार्केट में फ्रॉक थे सब खरीद लिए। तो जनाब भाभी जान का दुपट्टा यहाँ तक आ चुका है, और भाभी जान की जो बॉडी टाइट फिटिंग वाली जो उन्होंने सूट पहना हुआ है, वो जनाब हर तरह से यूं यूं करके दिखा रही हैं। और जनाब भाई जान जो हैं वो हर तरफ से क्लोजअप कर करके उनके जिस्म को नुमाइश पे दे रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आप जाके वीडियो में देखिए, बताइएगा। इनके ख़ानदान की जितनी भी औरतें हैं सब ने दुपट्टे प्रॉपर तरीके से लिए हुए थे, किसी का दुपट्टा भी उनके सीने से ऊपर नहीं था। मगर भाभी जान जो है आपकी, उनका दुपट्टा पूरे सीने से ऊपर था। और जो भाभी जान मटक रही थी, ओए होए होए, सबके सामने जितने मर्द हजरात थे, औरतें एक साइड खड़ी हुई थी, मगर भाभी जान सब मर्दों के साथ खड़ी थी। आपकी भाभी जान की क्या बात है भाई, इतनी प्यारी खूबसूरत भाभी जान आपकी है। सदके जावा, वारी जावा, नजर न लगे, है ना भाई, अच्छी बात है। मुझे कोई इतराज़ नहीं इनके घर लेने पर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इनके नई नई गाड़ियाँ ख़रीदने पर, कोई मुझे वो नहीं। मुझे सिर्फ इतराज़ है इन हराम खोरों की हराम खोरी पर। इसने अपने घर पूरे ख़ानदान के मर्दों को बिल्कुल छक्का बना के छोड़ दिया है, ना मर्द बना के छोड़ा हुआ है। मर्द वो होते हैं जो दो वक्त की मेहनत की कमाई की जो है ना लुकमा अपने बच्चों को खिलाते हैं। मर्द वो नहीं होते कि बिल्कुल छक्कों की तरह बस डांस किया कमाया। वो भी बेचारे जो है ना, वो जो डांस करते हैं मुजरा करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। मगर इन हराम खोरों ने क्या किया, साड़ों ने सारे मर्दों के हाथों में कैमरे पकड़ा दिए, और भाई उनको कहा कि पूरा दिन आप यूं यूं करके कैमरा लेकर अपनी बीवियों के आगे पीछे दिखाना, और फिर जनाब जाके सो जाना। तो उन तमाम मर्दों ने हराम खोरियाँ शुरू कर दी हैं। तो ये हराम खोरी का जो सिलसिला इनका चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो अप्रिशिएट तो बनती है ना। मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग में मैं सिर्फ इन लोगों को मुबारकबाद दे देती हूँ। पहले तो भाई जो मौलवी साहब हैं, यानी कि शब्बो रानी के अब्बा हजूर और उनकी अम्मा हजूर रुखसाना बीबी, आप दोनों को बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे, अल्लाह उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह उसको दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की दे। अल्लाह करे अल्लाह मियाँ उसको साल में 2 क्या 3 बच्चे दे, क्योंकि आपके सदका टाउन में तो इसके अलावा कोई काम होता नहीं है। शादी होती है और बच्चे होते हैं, शादी होती बच्चे होते हैं। तो जनाब आपके सदका टाउन के जो मेंबर में कुछ इजाफा और होने वाले हैं। अभी किसकी किसकी शादियां हुई हैं, अभी हाजरा बीबी की शादी हुई है, अभी उस लड़के की शादी जो भी अभी जो उम्रा कर आया, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गई हूँ, उसकी शादी हुई है। तो जनाब ये 2-3 शादियाँ तो इकट्ठी हुई हैं ना। तो अभी हाँ उसकी भी हुई है ना, सुल्तान साहब की शादी हुई है। उसके बाद सुल्तान के भाई की शादी हुई थी पिछले साल। देखिए उनकी गोद में माशाल्लाह से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खेल रहा है ना भाई। तो इन सब की जो शादियाँ हुई अब धड़ाधड़ इनकी घर में आबादी और बढ़ेगी, यानी कि पाकिस्तान की पूरी आबादी एक साइड में और सदका टाउन की आबादी एक साइड में।
तो भाई जनाब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके ख़ानदान में लड़कियों की शादी और बस रिश्तों का जो उन्होंने खिचड़ी बना के रखी हुई है ना, उसकी हमें नहीं समझ आती। इतनी बड़ी खिचड़ी क्यों पका के रखी इन लोगों को? या तो इनकी लड़कियों को बाहर कोई लेता नहीं है, या फिर उनके लड़कों से बाहर से कोई लड़की मिलती नहीं है, इसलिए आपस में ही सब गंद मचा के रखा हुआ, कीचड़ खाना बनाया हुआ है। एनीवे, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और ब्रांड साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। आपने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली है, इतनी मिठाइयाँ खिला दी है। भाई देखो, मुझे कोई जेलसी नहीं हुई, ठीक है। मैंने आपको मुबारक भी दे दिया है। जहाँ मुबारक बनती है मुबारक भी देती हूँ, जहाँ पे जूते लगाने होते हैं मैं जूते भी लगाती हूँ। तो भाई अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ सदका टॉन्ट के उन तमाम लोगों को मुबारक देने के लिए जो जिन्होंने सुलह कर ली है, आपस में एक दूसरे के गले लग गए हैं, एक दूसरे को माफ़ कर दिया। माफ़ करना हमारे इस्लाम में भी बहुत अच्छा समझा जाता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपने दुश्मन को भी माफ़ कर दो जब वो आपसे माफ़ी मांग ले। सुलह करवाने वाला भी बहुत नेकी कमाता है, और सुलह करने वाले भी दिल साफ करके सुलह करते हैं तो उनकी भी नेकी ही मिलती है। ये अच्छी बात है कि नबीला राशिद जो है वो इतने बुरी हालत से घर से निकली थी रात को, रात के अंधेरे में उनको धक्के मार के निकाला गया था। जिस तरह से वो गई थी वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। इतनी बेइज्जत होने के बाद अगर कोई दोबारा वापस आता है, इसको कहते हैं थूका हुआ चाटना। आपको बात बुरी लगेगी, मगर मैं एक बात बताऊं, जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो ना, वहाँ पे आपको दोबारा नहीं आ जाए। जहाँ से एक दफ़ा आपकी बेइज्जती हो गई हो, जहाँ पर एक दफ़ा आप की इतनी इंसल्ट होगी, आपको चोर कहा गया, आपको इतना कुछ कहा गया, दोबारा आप फिर दुम हिलाती हुई वहाँ पर वापस आ गई हैं, और आके फिर सबके गले लग रही हैं, सबको प्यार कर रही हैं। अच्छी बात, मुझे ये बात की खुशी हुई है कि चलो सबने एक दूसरे को माफ़ कर दिया, एक दूसरे के गले लग गए हैं। मगर ये लोग दिल के साफ नहीं हैं। उसने उसको माफ़ कर दिया कि ये इसका मतलब है कि इनके ख़ानदान में खुद सोचें कि सगी बहन और बहनोई जो थे, यानी कि सलमा और अल्ताफ़ की मैं बात कर रही हूँ, इन लोगों की भी अपने सगे माँ बाप से दुश्मनी चल रही थी, यानी कि नफ़रत चल रही थी, बहन भाइयों से नफ़रत चल रही थी। अभी आप खुद से देख ली, सुल्तान और उसकी जो वाइफ है वो उस घर से चले गए हैं, वो शादी में भी शामिल नहीं हुए। अकरम साहब और उनकी बीवी जो नादिया है, उनकी भी कहते हैं भाइयों के साथ रंजिश चल गई, यानी कि ये इस ब्रांड साहब ने अपने उस भाई को भी नाराज़ किया हुआ है। यानी कि पहले अपने घर के जो है ना गंद को साफ करो, उसके बाद दूसरों को मशवरे दो। ये जो बैठ गए हैं बहुत बड़े मुंशी बनकर, बहुत बड़े यानी कि अदालत के बहुत बड़े जो लॉयर और कमिश्नर बने हुए हैं, और बहुत बड़े यानी कि जज साहब बनकर आ गए हैं। ये सरदार साहब जो हैं, यानी कि ब्रांड साहब जो हैं, इतने बड़े जो अदालत में बैठकर इंसाफ पसंदी का जो नारा लगाया हुआ है, उससे सुलह कर लो, उससे सुलह कर लो। तुम पहले अपने गिरबान में झांको, ठीक है, और जाके पहले अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगो, अपने भाई को जाके गले लगाओ, पहले अपना तो पहले सुलह करवाओ। दूसरों के सुलह करवाने में लगे हुए बहुत बड़े इंसाफ पसंद, इंसाफ का तराजू लेकर जो खड़े हुए हो, पहले अपने भाई से जाके माफ़ी मांगो, भाभी से माफ़ी मांगो, उनसे जाके सुलह करो। अपने भतीजे से या भांजा, तुम्हारा क्या लगता है, भतीजी और भांजा, हाँ, उनसे जाके कहते हैं जाके सुलह करो, ताकि एक दूसरे के दिल के जो है गंदगी वो साफ़ हो जाए। दूसरों को सुलह कराने में लगे हुए अपने गिरबान में नहीं झाँक रहे हो। तुमने क्या क्या गंद मार के रखा हुआ। एक भाई जो तुम्हारा मुखलिस पागल है, वो नया ड्रामा करके बैठा, अभी शादी में डांस कर रहा था, मुजरा कर रहा था, और अभी जनाब वो खटिया पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल अभी हुआ कि कभी हुआ, वहाँ पे वो कर रहा, ऐसे रहा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ उसको चूटियाँ काट रही हैं, कहाँ कहाँ सुई चुभी हुई है। और जनाब अभी जब आपने अपने नई गाड़ी की ओपनिंग की, सरप्राइज देने के लिए सबको इकट्ठा किया, तो आपकी भाभी जान जो बत्तख साहिबा है, यानी कि शमीना बीबी जो है, वो वहाँ पे लुडियाँ डाल रही थी और टप्पे गा रही थी और ठुमके लगा रही थी। तो जिसका मियाँ बिस्तर मर्ग में पड़ा हो, वो इस तरह से खुशियाँ मना सकता है? पहले आप बताएं, आप खुद बताएं। एक भाई बीमार पड़ा है, दूसरा भाई बिस्तर मर्ग में पड़ा है, एक भाई जो है वो नाराज़ होकर बैठा हुआ है,
और भाई जनाब भाभियाँ किसी को मुंह नहीं लगाती हैं, भाई किसी को मुंह नहीं लगाते हैं, और जनाब ये सुलह का जो है ना झंडा लेकर सबके साथ घूमते फिर रहे हैं कि भाई सुलह कर लो, सुलह कर लो, भाई सुलह कर लो। जनाब तुम जितना झूठ बोलते हो, जितनी बदकारियाँ करते हो ना, ऐसा बंदा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एनीवे अभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, बहुत सारे प्रूफ दिखाने वाली हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करने वाली हूँ जिसका आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये तो वीडियो सब मैंने उन लोगों को मुबारक देने के लिए बनाई थी, क्योंकि खुशी में इंसान को खुश होना चाहिए। क्योंकि ब्रांड जो साहब ने बकवास की है अपने वीडियो में, क्योंकि इनकी बकवास करने की आदत है इनको, कि भाई लोग मेरी चीज़ों से जलते हैं, मेरी खुशियों से जलते हैं, और मैं जो चीज़ें दिखाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन जलता है और कौन खुश होता है। तो ब्रांड साहब आपकी जो टके टके की चीज़ें हैं ना, आपको मुबारक हो। कोई आपके टके टके की चीज़ से नहीं जलता। पहले अपनी बीवी को सुधार, ठीक है, पहले अपनी बीवी को सुधार, फिर दूसरों को क्यों उंगली उठाना। अपनी बीवी को देखो तुमने नुमाइश के लिए रखा हुआ है, तुम्हारी बीवी चमक छल्लो बनकर खड़ी जो है डांस करती फिर रही, मुजरा तो करती है वो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अभी तो उसने खुले आम करना शुरू कर दिया, कितने तुम्हारे पूरे ख़ानदान के मर्द खड़े हैं, बच्चे बूढ़े सब खड़े हैं, और उसने जो लिबास पहना हुआ आप खुद देखो, कितना टाइट कपड़े पहने हुए हैं, जिस यहाँ तक उसके कहते हैं पूरा सीना नज़र आ रहा है, और यूं यूं हिलती फिर रही है। अगर मैं उसकी कुछ तस्वीरें लगा दूँ ना तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। कहो तो लगा देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो मुझे किसी के कहते हैं फेस रिवील करने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ना किसी के क्लोज़अप लगाने से फ़र्क पड़ता। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं ऐसे घटिया बगारत लोगों को क्या बोलूँ मैं लोगों को। एनीवे ये वाली जो वीडियो हम खुशी खुशी ख़त्म करते हैं, और अच्छी अच्छी बातें की हमने, मुबारकबाद भी दिया। अल्लाह में सबको खुश और आबाद रखे और तरक्की दे। आपके पास जो अभी 1942 की जो गाड़ी आई है, अल्लाह में आपको 2026 की भी गाड़ी दे, हमें तो खुशी है। आपके पास जो पुराने पुराने 4-5 घर हैं, अल्लाह में आपको ब्रांड न्यू घर भी दे, हमें बहुत खुशी होगी। मुझे कोई जेलसी नहीं है, किसी को कोई जेलसी नहीं है, क्योंकि भाई हम जो कुत्ते होते हैं ना वो हड्डी ही चूसते हैं, और उसके बाद जनाब अपने आप को समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर ब्रांड साहब आपने मेरी वीडियो देखी हो, क्योंकि आप तो देखते तो हो नहीं, वैसे ही आप कमेंट कर देते हो, वैसे ही आप बकवास कर देते हो, वैसे ही आप भौंक देते हो कभी कभी आकर, तो भाई हम भी मुबारक देते हैं, ऐसी बात नहीं। हम दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों को भी मुबारक दे देते हैं जब उनकी खुशी में हम खुश होते हैं शामिल होकर। खुदा हाफिज़।